اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ سورہ زلزلہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے، تو اذا کا مطلب جب ہے نا؟ اب اس میں دیکھیں گے فعل کیا ہے، یہ ہے زلزلہ، اور یہ ہمیں پہلی بار 4 لیٹر کا ملا ہے ہمیں فعل جو ورب ہے۔ ابھی تک ہم لوگ کو جو ملتا تھا وہ ملا تھا، ہم نے کام کیا تھا جو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا آیا تھا فعلا پہ، ٹھیک ہے، یہ فعلا۔ اس بار کیا ملا؟ زلزلہ۔ زلزلہ مطلب جیسے ہم لوگ جانتے ہیں اردو ہی ورڈ ہے، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں ایسے عربی ورڈ۔ زلزلہ مطلب ہلنا، ہلا، تو اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پیٹرن کو بھی ابھی یہ تو خیر 4 لیٹر کا، تو 3 لیٹر کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ فعلا، اگر ہم ماضی کا دیکھیں فعلا مانے اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا پیسیو وائس جو تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا فوئلا، فوئلا، اس کا مطلب وہ کیا گیا، کوئی بھی چیز کیا گیا تو فوئلا ہو گیا، یہ پیٹرن۔ تو یہ چونکہ 4 لیٹر بہت کم آئے ہیں، اور 90 جیسے میں نے پہلے بولا ہے 95% سے اوپر تو آپ 3 ہی لیٹر سے ورب زائد، تو یہ کم آئیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کیا ہے، اس کا جو پیٹرن ہے وہ زلزلہ۔ زلزلہ مطلب ہلا دیا جانا، تو پیسیو وائس ہے جس کو مجہول ہم کہتے ہیں، تو یہ فوئلہ کے حساب سے ہو جائے کیا؟ یہ زلزلہ، ٹھیک ہے، زلزلہ، تو یہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب دیکھیں گے کہ اگر مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث اور وہ بھی غائب، مطلب تھرڈ پرسن، تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ فعالت ہو جاتا تھا، ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں دوبارہ، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن تاکہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی اچھی ہو۔ فعالت، اس نے کیا، یہ تھا، ٹھیک۔ اگر پیسیو وائس ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ فعلت، اس نے کیا، مطلب مؤنث کے لیے اس نے کیا، وہ فعلت، وہ مطلب کوئی بھی کام جو مؤنث کا فارم ہے وہ کیا گیا، جیسے، ٹھیک ہے، تو فعلت ہو۔ تو یہاں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ اذا زلزلت، یہ تی ہے، وہ ابھی ہم بتائیں کیوں ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس کا اوریجنل فارم جو ہے وہ کیا ہے؟ زلزلت، تو جب ہلا دیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا زل، اذا زلزی، اچھا زی کا یہاں پہ آئے گا، تھوڑا سا لکھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، یہاں پہ زلزلت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، کہ جب ہلا دیا گیا، ٹھیک ہے، اذا مانے جب، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز دیکھنے کی ہے، 2 3 چیزیں تو ابھی دیکھیے گا۔ اذا مطلب کیا ہم نے بتایا تھا؟ جب، ٹھیک ہے، اور یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم سارا ماضی دیکھ رہے ہیں، کہیں مضارع ہے نہیں، مضارع لگے تو پہلے یا تا اور نہ لگے گا، یہ ہم جانتے ہیں شروع سے، ٹھیک ہے، تو یہ ماضی ہے۔ تو بیسیکلی اس کا میننگ جو اگر ہونا چاہیے آپ قاعدے سے دیکھو تو کیا ہو جائے گا کہ جب ہلا دیا گیا، لیکن ایزا کے بعد جب لگتا ہے ماضی تو وہ اس کا میننگ مستقبل کا ہو جاتا ہے، مطلب جب ہلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو جب ہلا دیا جائے گا، اذا زلزلت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ تھرڈ پرسن کے لیے جو زلزلت ہے، تو اس کا جو فائل کون ہے؟ ارزو۔ اب یہ کیسے دیکھیں گے ارزو فائل ہے؟ جو ہم نے پہلے بولا تھا کہ فائل کا پہچان ہے کہ وہ اس کے اوپر پیش ہوگا، وہ کرنے والا ڈوور ہے اس کے لیے، تو زمین ہلا دی جائے گی، تو یہ فائل ہے بیسیکلی، ارزو کیا ہے؟ فائل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ارزو جو ہے فائل ہے، تو اس کا یہ دیکھیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟
चूंकि हमें पता है कि वर्ब का जो हम अगर यहाँ पर हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये जुलजिलत जो है ये मुअन्नस के लिए लगा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो फाइल है वो मुअन्नस होना चाहिए, ठीक है। तो बार बार मैं बोलूँगा कि आप 5 पेज का चार्ट है ये, इसलिए मैंने इसको बहुत कॉम्पैक्ट बनाया, पहले ही मैंने कहा। इसको बार बार देखिएगा तो इसी में सारे ग्रामर हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? अर्ज, अर्ज क्या है? अर्ज में ता नहीं लगा हुआ, बोलता नहीं, ठीक है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि बोलता है तो क्या मुजक्कर है कि मुअन्नस है, मतलब अगर देखने में तो लग रहा है कि ये मुजक्कर है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे अपने चार्ट पे कि पहला स्टार्टिंग क्या है कि त लग गया तो पहले डिक्लेयर हो गया कि वो क्या मुअन्नस है, मतलब 99% केसेस में, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि लगेंगे मुजक्कर लेकिन रहेंगे वो मुअन्नस। तो इसमें ये चीज़ हमने देखा था, नारुन शमसुन, बार बार ये दिखाएंगे तो आप हमें याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अर्ज, अर्ज माने जमीन, ठीक, अर्जुन। इसी तरह आपको हो जाएगा शमशुन, शमसुन, नारुन, नफसुन। तो ये सब क्या है? देखने में मुजक्कर हैं लेकिन लगेंगे, लेकिन है मुअन्नस। अब देखिए, अब धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। इजा जुलजिलतिल अर्जु, जब जमीन हिला दी जाएगी, ठीक है। तो ये हालत रफा में भी है, इसलिए ये फेल है, ये मुअन्नस है, इसलिए ये होगा जुलजिला। अब ये ती क्यों लग गया? तो ये क्या होगा कि ये जब दो चीज मिलते हैं, ये कायदा है कि जुलजिलत है और अल अर्ज है, ठीक है। अल अर्ज है ना, अल अर्ज, अल अर्ज। तो जब ये मिलेगा तो क्या होगा, इसके नीचे जेर आ जाता था, इस और इससे मिल जाता है लाम से, ठीक है। तो इजा जुलजिलतिल अर्ज, जब जमीन हिला दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखने का है। सबसे मेन पॉइंट एक फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, चूंकि इसमें कई सारी चीज़ें नहीं आई हैं। ये 4 लेटर का है, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। पहली बात ये हो गई। इज़ा के बाद माजी लग गया, लेकिन इसका मीनिंग मुस्तकबिल का होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुजारा का, इस तरह से है, ठीक है। और ये तो हमने डिस्कस किया है कि जब फाइल, इसका जो फेल है, जो डूअर है, वो क्या होगा, हालत रफ़ा में होगा। और अगर वो मुज़क्कर हो तो ये मुज़क्कर का हिसाब से चलेगा, ये मुअन्नस हो तो ये मुअन्नस के हिसाब से चलेगा, ठीक। तो तो क्या हुआ, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला। अब ज़िलज़ाला क्या है? जब ज़मीन हिला दी जाएगी, हिलाए जाने की तरह, ठीक है, सख्त हिलाया जाना, ऐसा। तो किसी चीज़ पे अगर जोर देना होता है तो अरबी में ये स्टाइल है कि उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया जाता है, उसके आइडियाज़ को। ये आइडिया है, समझिए, जब ज़मीन हिला दी जाएगी सख्त, उसको सख्त हिलाए जाने की तरह, है ना। तो जिलजाला, तो ये भी इसी से बना जिलजिला। हा किसका? हा किसके लिए आया? हा मुअन्नस के लिए आता, उसका सख्त हिलाया जाना, उसका हिलाया जाना। तो किसी चीज़ को जोर दिया जाता है तो उसको, जैसे कि अभी हालांकि वो दूसरे सूरह में है, जिसमें रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे लोग धकेल दिए जाएंगे, काफिरों के लिए कि जहन्नम में जब धकेल दिए जाएंगे, धक्के धकेल दिए जाने की तरह। तो उसमें क्या है कि यौमा युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ, जब वो धकेल दिए जाएंगे, धकेल दिए जाने की तरह। तो उस बात को जोर देने के लिए ये कुरान का एक स्टाइल है, ठीक है। और तो इस बात, तो ये जिलजाला उसके सख्त हिलाए जाने की तरह जब जमीन हिला दी जाएगी, ठीक है। हाँ क्यों लगा? आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ा था किताब होगा तो उसका, उसकी किताब, तो ये चूंकि अर्ज वो है मुअन्नस है, तो ये मुअन्नस के लिए बात हो रही है, हाँ उसके उसके हिलाए जाने की तरह, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर आप देखिए, जिलजा लहा, जिलजा लहा। तो जिलजा लहा तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। तो जिलजा लहा, अगर जिलजा लहा क्या है, जिलजा लहा, ठीक है, जिलजा लहा। तो ये चीज देखिएगा आप कि ये हम पहले भी बार बार डिस्कस किया है कि ये क्या है, लाइट फॉर्म में है, क्योंकि इसम जिलजाल है, ये लाइट फॉर्म में, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का मुजाफ मुजाफ इलैहि ही हो जाता है, उसका हिलाए जाने की तरह, है ना। इसमें अल नहीं है या जिलजालुन नहीं, ठीक है। तो उसके हिलाए जाने की तरह वो हिलाए देते हैं। सख्त हिलाए जाने की तरह जब जमीन को हिलाए
अब आई व अखरजतिल अर्ज़, ठीक है। अब ये देखिए, आप इसको आप आराम से आप पकड़ सकते हैं, ये इसमें क्या हो सकता है, वर्ब वर्ब है खरज, खरज माने निकलना, ठीक है। लेकिन अख लग गया तो ये क्या हो गया, अफला का पार्ट है ना। वो अफला का क्यों पार्ट है, अभी देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, बार बार अभी देखने तो याद रहेगा हमें, ठीक है। तो अगर फला का देखेंगे तो खरजा है बेसिकली, वो बेसिकली है क्या, हाँ, खरजा, खरजा माने निकलना, खरजा निकलना, ठीक है। ये तो ये फाइलक है बेसिकली, अगर चलेगा फाइलक के फॉर्म में अगर है तो ये है। और अखरजा क्या हो जाएगा, अखरजा जो है वो बेसिकली अफला का पार्ट, अफला का फॉर्म लेता है, ठीक है। अफला, तो अफला क्यों होता है, ये यूजुअली क्या होगा जब ये रहेगा फाइला, या इसका जब हम वो देखें मुजाहरा, तो यफलू सब होगा, और इसका जो होगा यू फील हो जाए तो यू खरीजू, इस तरह से। तो खैर अभी मुजाहरे की तो बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं ये ट्रांजिटिव के लिए, इंट्रांजिटिव के लिए, जैसे वो निकला है ना, तो वो निकला तो ठीक है, वो निकला, किसी को निकाला तो नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये खराजा, लेकिन जब निकाला तो क्या होगा, अखराजा, उसने निकाला, तो वो अफला पे हो। तो फला से अफला, हर फला का अफला बेसिकली ज़्यादातर केस में क्या होगा, इसके इसको अगर ये इंट्रांजिटिव है तो इसको ये ट्रांजिटिव में बदल देता है ना। जैसे मैं हंसा, तो मैं हंसा कुछ नहीं, उसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने निकाला या मैंने किसी को दिया, ठीक है। तो, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होता है, जो हम जानते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या है, अखरजतिल अर्ज़, तो अभी अब तो अखरजा को निकलना, ये तो हमने समझ लिया। अब सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसका क्या, अखरजित, अखरजत, तो उसने निकाला ये फीमेल के लिए, है ना, मतलब अखरजत, अखरजत किसने निकाला, उसने निकाला अखरजत। बट अखरजत के लिए हम देखेंगे इसका कहाँ पे किसने निकाला, या तो पहले से बात हो रही होती तो उससे हम समझ रेफरेंस लेते कि किसी मुअन्नस का लिख लेता, तो पता चला कि फाइल इसमें जो मुअन्नस है। अब इसमें आगे ढूंढते हैं कि फाइल मुअन्नस कौन सा है, तो यहाँ पर सेम फाइल मुअन्नस है जो यहाँ पर अभी देखिए अर्ज, ठीक है। तो अखरजतिल अर्ज, तो जमीन क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, है ना, चूंकि इज़ा चल रहा है तो सब अभी मुस्तकबिल में बात होगी। और ज़मीन निकाल देगी, क्या निकालेगी, उस ये तो फाइल हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, चूंकि ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा, जो आपने बोला कि खराजा निकल गया, हम निकल गया, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन निकाली, ज़मीन निकाल देगी, तो क्या निकालेगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट की चाहिए, तो वो क्या होगा, अस्काला, अपना बोझ निकाल देगी, ठीक है। अब अस्काला का देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, और बार बार रिपीट होंगी तो याद हो जाएगा, इसलिए। और चार्ट वही पाँच, चार पाँच पेज का जो मैंने बनाया वही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ देखेंगे अस्कालहा, है ना, अस्कालहा, अस्काला, अस्कालहा, तो क्या हुआ ये, अस्काला, अस्काला बेसिकली बोझ हो गया, ठीक है। और ये क्या है, लाइट फॉर्म में, है ना, लाइट फॉर्म में। और हाँ तो मतलब उसका अपना बोझ, हाँ उसका बोझ मतलब चूंकि ही के लिए, शी के लिए आ रहा था, हर बर्डन, है ना, उसके हर बर्डन, और उसका अपना बोझ निकाल दें, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देने की, मतलब थोड़ा सा हर, जब आप पढ़ो तो आप चूंकि आप ग्रामर में पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ थोड़ा डिटेल भी, और हम गौर करेंगे तो एक एक नई चीज़ पता चलती जाएगी और याद हो जाएगा। अस्कालहा, अस्कालुहा नहीं है, अस्कालहा क्यों है, ये नसब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नसब में रहेगा हमेशा। जैसे हमने बोला है कि सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है, वो क्या है, उसके हालत रफ़ा में होगा, जो पेश होगा। लेकिन ये क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, वो हालत नसब में रहेगा। ये हालत नसब और हालत वो क्या है, वो हमने यहाँ भी देखा है, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। ऐसे बार बार जब भी आएगा तो दिखाएंगे इसको। ये है हालत रफ़ा नसब, जो हमने यहाँ बात किया, ठीक है। तो वो लाइट फॉर्म में है, तो इसलिए वहाँ पर आल नहीं है, ये है अस्काला। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग अपने लेसन में दिया था, मैंने एक बार मैं दे देता हूँ ताकि एक बार आप लोग को याद हो जाए। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब स्टार्टिंग में समझने के लिए, और बहुत शॉर्ट एग्जाम, मतलब बहुत छोटा सा सेंटेंस है ये। कतला, मैंने किया था एक बार, कतला दाऊद जालूत, ये कुरान सूरह बकरा में है ना। तो इसमें देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जालूत को, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्ब है, मतलब फेल है,
ठीक है, ये वर्ब है। इसमें डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? तो आप कैसे बताओगे ये डूअर है कि ये डूअर है, किसने किसको मारा? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये पेश है ना, तो ये इससे पता चलता है कि ये वो है, सब्जेक्ट है, मतलब जिसको फेल कहते हैं। ठीक है, और मफूल ये है, ये मफूल ऑब्जेक्ट कह लीजिए। तो इसका ये तो ये तो डायरेक्ट, अच्छा इंग्लिश में ने पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका ये फॉर्म रहेगा कि हालत नसब में रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड हालत नसब। और ये पेश का मतलब हो गया जो हमने पढ़ा हालत रफ़ा, तो हालत रफ़ा है हालत नसब, तो ये ध्यान रखिए चीज़ें। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं तो स्टार्टिंग में मैंने ये दिया था मेरे वन ऑफ द लेसन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वो अखरज तिल, और तिल हो गया जो हमने अभी देखा था, अखरजत, अखरजत है और अल अर्ज़ जब मिलाएंगे अखरज तिल है, तो ज़मीन निकाल लेगी अपना बोझ, है ना। अब देखिए वकाल अल इंसान, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा डिटेल मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी, अब क्योंकि थोड़ा हम लोग आने लगा है काफ़ी चीज़ें। काल अल इंसान हो, अब इंसान कहेगा माला, इसको क्या हो गया। अब इसमें आप खुद ही देख सकते हो कि ये वर्ब है, और ये काल अल इंसान, इंसानों क्या है, ये हालत रफ़ा में यही सब्जेक्ट है इसका, तो इंसान कहेगा माला, इसको क्या हो गया। अब हा का मतलब वही हा चुके वो है इसके लिए मुअन्नस के लिए, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे जो बात हो रही है ये अर्जों का बात हो रहा है ना, ये मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन वो बयान करेगी अपनी खबर, है ना। अब देखिए इसमें तुहद्दिसु, तुहद्दिसु क्या हो गया, जिस दिन वो बयान करेगी अपनी खबर, तो उसमें आप देखिए कि क्या है। आ, अब ये देखिए इसमें वर्ब कौन सा है, ठीक है। ये अब ये इसमें हदीस माने बयान करना, हदीस, ठीक है। और तुहद्दिसु, तो तू जो है ये मुअन्नस के लिए आया, ठीक है। तुहद्दिसु अखबार, अपने खबर को वो बयान करेगी, चूंकि जमीन के बारे में बात हो रही है, तो यौम तुहद्दिसु। अब ये भी देख लेते हैं, चूंकि किसी चीज़ को हमको स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ को डिटेल देखने जाना, जितना मतलब बेसिक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ग्रामर जहाँ तक है। ऑब्वियसली हम एडवांस लेवल में जाएंगे नहीं, लेकिन ये काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट हम इसको कहते हैं हमेशा। तो हदीस हो, तो ये वो बयान करेगी अपनी खबर, अखबार। तो पहले ये देखते हैं हदीस क्या है, ये वो है। और हदीस का फॉर्म क्या है वो हम यहाँ से देखते हैं, इसी में, ठीक है। अब देखिए ये हद, ये फ़अला का पार्ट, फ़अला, अब इसमें चार हो जाते हैं, राइट, अभी हमने यहाँ पढ़ा था। अफ़अला भी चार है, फ़अला बीच वाले में तस्दीद लगा हुआ है, यहाँ भी आप देखो बीच वाले में तस्दीद लगा हुआ है, फ़अला ऐसे समझ, ठीक है। तो ये क्या होगा, बयान करना, इसका मतलब होता है बयान करना। तो ये चीज़ हो गया, तो ये इसका जो मुज़ारा बनेगा ये सब बनेगा, देखिए आपस के अंदर या की जगह पर सिर्फ ता लगा, चूंकि वो ता जो है वो मुअन्नस के लिए है, ता यू के लिए भी आता है और मुअन्नस के लिए भी आता है, ये हमने पहले भी बताया था। तो उसके सेंटेंस से पता चलेगा कि वो मुअन्नस के लिए है या यू के लिए, तुम्हारे लिए। तो हद दिसो, देखिए तो हद दिसो, तो यू, तो फाइलू, तो हद दिसो वो बयान करेगी, तो हद, तो हद। और रूट लेटर अगर देखा जाए तो वो हादसा ही है, वो फायला का हादसा तीन ही लेटर है, लेकिन उसका ये डिराइव फॉर्म है जो हम इसको कहते हैं, ये सारी जो चीज़ है फायला से बनी, अफला फ़अला, या इसके नीचे जो हमने यहाँ डिस्कस किया है सारा एक जगह में रखा है, ये ये सब डिराइव फॉर्म, फ़अला फ़ाला, बीच में लिफ लग गया, तफ़अला इस्तफ़अला इफ्तफ़अला इफ्ताला इनफ़ला तफ़ाला तफ़, ये सब सारी चीज़ें। तो लेकिन ये डिराइव फॉर्म है, लेकिन रूट लेटर से जो बना वो फ़अला से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हदीस तो जिस दिन वो बयान करेगी अखबार, अखबार, फिर ये क्या है, अखबार मतलब खबर है ना। वो अपनी अखबार, फिर एक दिन सेम सेम जो हम देखते हैं मुजाफ मुजाफ अलैहि, अपना अपने खबर बयान करेगी, चूंकि ये लाइट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मुजाफ और हा जैसे प्रोनाउन है, अपनी खबर, हा वही सिर्फ ज़मीन के लिए आ रहा है। तो जिस दिन वो बयान करेगी अपना खबर, ठीक है। हाँ भाई, बियन्ना रब का अवहाला, ठीक है, बियन्ना रब का, तो हाँ, बियन्ना
कहाँ पे भी अन्ना, अन्ना मतलब तो बेशक, है ना, ठीक है। और बी जब लगा इस वजह से, मतलब उसके आगे उसकी वजह बयान हो रही, जब बी लग गया ना यहाँ पे, इस वजह से कि बेशक भी अन्ना रब का अवहाला, आपका रब वही करेगा उसे। तो ये तो फेल है, ठीक है, ये फाइल है, ठीक है। बियन्ना रब का अवहा लहा, और ये देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है, लहा जमीन के बारे में, जमीन को, ला माने ला का मतलब को के, इस तरह से होता है लहा, ये बयान करेगी इस वजह से कि बेशक बयान करेगा आपका रब, sorry, आपका रब वही करेगा उसे, ठीक, अवहा वही, ये वही से बना, ठीक है, ये तो सिंपल माजी है, ठीक है, अवहाला। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ देखने की ये है कि आप, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है आपके, और आना भी चाहिए इनफैक्ट, कि अभी तक हमने जहाँ भी देखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हालत रफ़ा में होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रब्बा का है, तो बेसिकली जो आप बोलिए कि यहाँ पता आपने बताया था कि हमेशा कि रब, उस हिसाब से रब्बू होना चाहिए, वो यहाँ पर हम देखते हैं तीन फॉर्म अगर हैं इसके, एक माउस में ठीक करता हूँ, हाँ। तो ये क्या हो जाए, ये रब्बू, रब्बा, रब्बा, और ये रब्बी, ठीक है, रब्बी, ठीक है। तो ये तो हालत रफ़ा में है, ठीक है। ये हालत नसब में, हालत जर कर अभी देखने नहीं, चूँकि फ़ाइल करेगा, ठीक है। तो फ़ाइल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये हालत रफ़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है, वो देखते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, उन इन्ना, अन्ना, लअल्ला, ये है। तो जब ये वो फाइल को क्या, उसको हालत नसब में बना देते हैं, बस इतना सो। लेकिन आप ये से सोचोगे, अन्ना लगा हुआ है, तो अगर अन्ना ना होता तो ये रब्बू, तो समझ जाइए कि ये फाइल है, आपका रब अवहाला, जब ये इस वजह से कि बेशक आपका रब अवहाला, वही करेगा उसे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर नहीं एग्जाम्पल, जैसे इन्नल्लाह, तो आपने देखा होगा जब भी इन्नल, इन्नल्लाह, इन्ना के साथ आता है बेशक, है ना, तो यहाँ पर लाहा आता है, इन्नल्लाहु नहीं आता है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ठीक है। और अगर कहीं पर ऐसा आपको मिलेगा हुवल्लाहु गफूरुर रहीम, है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे हुवल्लाहु, है ना, तो ये हालत रफ़ा है, ये हालत नसब। क्यों हालत नसब है यहाँ पे, ये है दोनों फाइल, यहाँ भी ये फाइल है, और यहाँ भी ये फाइल ही है, ठीक है। बट यहाँ पर चूंकि ये इन्ना नहीं लगा हुआ है, तो एक मतलब कुछ आप हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे, इन्ना, लाकिन्ना, लअल्ला, इस तरह से कुछ है, मतलब 6-7 वर्ड्स जो जो आपके फाइल को हालत नसब में ले जाते हैं, बट रहता ही फाइल ही वो, ठीक है। और मेरे जो मतलब पढ़ाने का जो मैंने स्टाइल, जो मुझे लगा कि अब, चूंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि वो पूरा सीक्वेंस लिखा देते हैं लोग, तो याद होता नहीं। मेरा मेरा कहना मतलब है, जब जब चीज़ मिलती जाए उसी समय एक्सप्लेन किया जाए, तो आप धीरे धीरे खुद ही स्टॉक आ जाए। ये थोड़ा लंबा होने वाला है ये वीडियो इसका, तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। यौमइज़िन, यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातल लियुरौ अअमालहुम, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, यौमइज़िन जिस दिन, और उस दिन, ऐसे आप कह सकते हैं इसको, है ना, यौमइज़िन यसदुरु, है ना, यसदुरुन्नास। अब आप देखिए, ये सदरा नॉर्मल, मतलब 3 लेटर का वो है, सदर में लौटना यहाँ पे, यौम यौम यसदुरुन्नास, कौन लौटेगा, लोग लौटेंगे, देखिए ये हालत रफा में है, ठीक है, ये इसका और सब्जेक्ट है, कौन लौटेंगे, लोग लौटेंगे, है ना। जब लोग लौटेंगे, अश्तातन, अलग अलग होकर, अश्तातन ये अरबी वर्ड, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यौम यसदुर, अब इसका हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये बस है, ये पाला का, ये मजदर, सॉरी, मुजारा है, यह लगा हुआ, वो एक अगर वो लग गया, ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अलावा इसके साथ साथ अगर
मतलब खास ऑब्जेक्ट लग जाए तो बेसिकली, तो फिर ये वो का मतलब यहाँ हम फाइल यहाँ से लेंगे। अगर ये नहीं होता, यस होता, तो इसका मतलब पीछे कहीं बात हो रही थी, यस दूर ना, तो वो फाइल। ठीक है, तो यस दूर इस तरह से बनाते हैं। इंग्लिश में भी वैसे ही है, जैसे कि आप थर्ड पर्सन है, राइट, तो थर्ड पर्सन में तो हम देखते हैं कि ही गोज, दे गो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर किसी का नाम लेना है कि खालिद गोज, तो फिर वो खालिद थर्ड पर्सन में आता है, नॉर्मल ही नहीं रहता उसमें। तो इसी तरह से मतलब ये तो ही है, लेकिन अलग से लग गया फाइल, तो क्या हुआ, यजदुर मिनास। तो लोग क्या हुआ, इसमें लौटेंगे अश्तात, अश्ताता। अभी हम इसको तोड़ देते हैं, अश्ताता, तो लोग लौटेंगे अलग अलग। अश्ताता मतलब अलग अलग होकर लोग लौटेंगे जिस दिन, या उस दिन। लियुरा, लियुरा अमालहुम, ताकि, ली जब लग गया, जैसे इसमें बी था ना, इस वजह से, तो यहाँ ली में क्या हो जाएगा, ताकि। ताकि अब आगे बताया जा रहा है कि क्या क्या करेंगे जब लौटेंगे, तो क्या होगा, ताकि, सो दैट जो हम इंग्लिश में कहते हैं, लियुरा अमालहुम, ताकि वो देख, उनको दिखाया जाए उनका अमाल। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब यही आप पैटर्न आप पढ़ोगे ना, तो पूरा वर्ब जानने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें, कौन से था, शायद सूर्य नसर में पढ़ा था ना, रहता, रहता, तो उसमें का देखना का हम लेता है ना, रा, रा, हमजा, और ये था रा एन, ये था, तो मैंने देखना होता है। इसमें यूरो हो गया, तो ये बेसिकली वो है, पैसिव वॉइस है, दिखाया जाए, यूरो, जैसे युफ अलू, जैसा हमने देखा। तो आपको पूरा एग्जैक्ट पूरा वर्ब जाने की जरूरत है, चूंकि ये इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब, जिसके बीच में या पहले या आखिरी में अलिफ, हमजा, ये इस तरह की चीज लगी रहे, तो नॉर्मल वर्ब थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो उसके फॉर्मेशन में आप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। बहुत सी चीज़ गिरा दी जाती है, बहुत सी चीज़ लगा दी जाती है, इस तरह से। बट इतना जानिए कर रहा है एंड ये है गया, तो वो देखने के हिसाब से है। और यू रॉ हो गया, तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो उसका पैसिव वॉइस है, दिखा दिया जाए। वो आपको यहीं से ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, यूफ अलू था, है ना, या ये वाला है यूफ अलू, यूफ अलू। फाला में भी यूफ अलू, इसका मजहूर हो जाएगा, मुजारा जो है ये। और अफाला में भी ये ये हो जाएगा, मजहूर है, यूफ अलू। तो इसीलिए वो यूरो है, ठीक है। तो आप यहाँ, आप देखो यूरो, ताकि दिखा दिया जाए उनको उनका आमाल, आमाल हम। और ये अगेन फिर वही बात है, दो चीज़ इसमें है कि अमाल हूँ, उनका अमाल, तो मुज़ाफ मुज़ाफ अलैहि है, ये लाइट फॉर्म में है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए उनको दिखा दिया जाए उनका अमाल, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, हालत है नसब में, ठीक है। अमा लोम, लोम नहीं होगा। इसलिए अगर आदमी बेसिक ग्रामर जान ले, और अगर किसी को अगर शौक है कि अगर वो कुरान हिफ्ज करने का है, तो बेसिक ग्रामर से काफ़ी उसको मतलब हेल्प मिल जाएगा। अगर कहीं भूल भी जाए, तो उसको खुद ही याद कर लेगा, तो वो पता होगा कि हम कर रहे हैं ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं लेकिन, ठीक है। फमन ये अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ठीक है। फा माने, ठीक है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं सो, तो जो है उर्दू में कहते हैं तो जिसने किया होगा, मैं, वमन ये अमल, है ना, जिससे मैं मतलब हु करके आता है। तो अगर सिर्फ मन लग गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा हु, जैसे इंग्लिश में होता है। बट अगर हम इसको सेंटेंस में बताएं, तो हम क्या, द वन हु डज, है ना, इस तरह से। तो सो जिसने, मैं यह अमल, जिसने किया हो। अब यहाँ पे ये देखते हैं, इसका क्या था, यह अमल बेसिकली बेसिकली यह अमलू से है। तो यह अमलू या फलू वाली पार्ट होगी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा अब आपको दिक्कत होगी नहीं, ये वाला पाला का या फलू ये वाला हो जाएगा। तो यह अमलू, है ना, यह अमलू, जिसने किया है, अमल, अमल से बना अमल, यह अमलू से किया। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर फिर ये ऐसा क्यों होगा, इसमें इसके आगे ये क्यों लग गया, ये अमलू क्यों नहीं है। ये बेसिकली होना चाहिए, यह अमलू, वो करता है या करेगा, ठीक है, यह अमलू। तो इसमें आपको ये लाम पे वो क्यों आ गया, यह अमलू, ये अमल क्यों आ गया, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था कि इसको कहते हैं चेंज ऑफ मूड। लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, चेंज ऑफ मूड, ठीक है। तो बेसिकली मुजारा से चेंज ऑफ मूड बनता है कि इसका लास्ट में या तो आप ये साकिन हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है उसके ऊपर जबर लग जाता है। तो बट जैसे ये ऐसा आपको मिले, आप समझ जाओ कि बेसिकली आप ये उसका बेसिकली मुजारे ही का चेंज फॉर्म है।
ٹھیک ہے، جس میں بات کرنے کا ڈھنگ چینج ہوتا ہے، جیسے جو کرے، ایسا ہے نا، اس میں کیا ہے کہ فمن یہ عمل مثقالا، تو جو جو یہ عمل کرے گا، ہے نا، تو جو لگ کے بنا کہ ایسا عمل کرے گا یا جو عمل اس نے کیا ہو اس طرح سے، تو وہ یہ ہے، تو فمن یہ عمل، اس لیے یہ ہٹ جاتا ہے، مثقال ذرہ تن خیر، ابھی ہم اس کا یہ اس کو توڑ دیتا ہوں میں، فمن یہ عمل مثقال ذرہ خیر، ٹھیک ہے، یا اس کو بھی اور بھی توڑ دیتا ہوں، فمن یہ عمل مثقال ذرہ، ٹھیک ہے، تو جو جس نے کیا ہو یا جو کرے گا مثقال ذرہ، اب دیکھیے یہ کیا ہے، مثقالہ مطلب برابر، ذرہ برابر، اور یہ کیا ہے، یہ اپنا یہ لائٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، ان بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے، تو یہ لائٹ فارم، تو یہ مضاف مضاف علیہ، اور یہ حالت جرم ہے، ذرتین ہے، ٹھیک ہے، تو ذرتن ذرتن ذرتین، ٹھیک ہے، تو یہ مسلمون مسلمان مسلمین، تو یہ حالت جرم ہے، تو کیا ذرہ کے برابر، لیکن تو ذرہ کے برابر آپ بولیں یا ذرہ برابر، تو بیسیکلی مضاف مضاف علیہ، یہ مضاف ہے یہ مضاف علیہ، ٹھیک ہے، تو ذرہ کے برابر جس نے بھی کام کیا ہو، عمل کیا ہو، ہے نا، ذرہ کے برابر کیا عمل کیا ہو، اس کا آبجیکٹ کہاں پہ، اس کا آبجیکٹ جو ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا، تو بیسیکلی یہ ہے خیر، جس نے جس نے کیا ہو، فمن یہ عمل مثقال ذرۃ خیر، خیر، تو جس نے کیا ہو یا کرے گا ذرہ برابر بھی خیر کا کام، مطلب نیکی کا کام، اس لیے یہ حالت نصب میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تو کیا ہوا اس کے ساتھ، یرہ، یرہ، دیکھیں ہم نے بولا تھا یہ پیسو وائس ہے، یرہ، وہ دکھایا جائے گا، یہاں پر کیا وہ دیکھ لے گا، یرہ مطلب یہ چیز ہے، یہ مجہول ہو جائے گا یو فالو، ٹھیک ہے، یو فالو، اور سمپل مظاہرہ، سمپل مظاہرہ مطلب ایکٹیو ہو جائے یا فالو، تو یرہ ہو گیا، اور یہ یورا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ یہ ہے لیورا اعمال، دکھایا جائے گا اس کا اعمال، اس کو اس کا اعمال، اور یہاں پر کیا گا وہ دیکھ لے گا، وہ کس کے لیے آیا ہے، بیسیکلی اس خیر کے لیے آیا ہے نا، اس کو دیکھ لے گا، دیکھیے خیر بھی کیا ہے، دیکھیے آپ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، خیر کیا ہے، یہ مذکر، اس لیے ہو آیا، ہاں نہیں آیا اس کے لیے، ابھی تک ہم جو یہاں پہ دیکھیں تو زمین کے بارے میں بات ہوئی، اس لیے ہاں ہاں ہر جگہ تھا، ٹھیک ہے، تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو عمل کرے گا ذرہ برابر بھی نیکی کا، خیر کا، یرہ، وہ دیکھ لے گا اسے، مطلب خیر کو دیکھ لے گا، اسی طرح اس کے بعد یہ تو بہت سمپل ہے چونکہ یہ آپ نے کر لیا اسی پیٹرن پہ، ومن یعمل مثقال ذرہ، اور جو جس نے کام کیا ہو یا عمل کیا ہو ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی کیا، شرن، شر، تو مطلب اگر بدی کا یا برائی کا کام کیا ہو تو یرہ، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یرہ ہو، اور یہاں بھی دیکھے گا، یہ چیز ہم اگر یہاں پر ریپیٹ کریں تو یہ بھی آپ کو دیکھو حالت نصب میں ہے، تو دس از آبجیکٹ، اور یہ کیا دیکھ لے گا، کس کو دیکھ لے گا، ہو، شرن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو مذکر ہے، تو اس لیے ہو آیا ہے، اور ایک چیز اور ہم بتانا یہاں پہ دیکھیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر، خیر آبجیکٹ ہے، اور اس کو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مثقال ذرہ اس آبجیکٹ کا ڈیٹیل ہے، بیسیکلی جو ہے یا نارمل ہم لینگویج میں بات سمجھتے ہی ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم الف بے پڑھ رہے ہیں، تو ویسا ہے، تو یہ اس کا ڈیٹیل ہے، ذرہ برابر بھی خیر، اسی طرح بیسیکلی یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہو، اب اس کے ڈیٹیل میں جائے گا تو پھر وہ جیسے کہ اور بھی انگلش میں بھی ہے بہت ڈیٹیل میں آپ کو جانا پڑے گا، تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ کیا ہوا اس کا ڈیٹیل ہے بیسیکلی، تو ومن یہ عمل مثقال ذرۃ ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے کام کیا ہو ذرا برابر وشا تو وہ اسے دیکھ لیں، تو یہ ہے سارا چیزیں، آج تھوڑا سا لمبا ہوا چونکہ یہ تھوڑا سا لمبا تھا، ابھی تک تو چھوٹا چھوٹا چلتا تھا، قل واللہ احد، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں پھر دوبارہ، تو ہاں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا جائے گی سخت ہلائے جانے کی طرف، ٹھیک ہے، اخرجت الارض اثقالها، اور باہر نکال دے، اخرجت الارض، زمین باہر نکال دے گی، نکال دینا، اثقالها، اپنا بوجھ نکال دے گی، ٹھیک ہے، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا ارے اس کو کیا ہو گیا، ماں مانے کیا ہو گیا یہاں پہ، ایسے ماں مانے جو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کو کیا ہو گیا، یوم تحدث اخبارها، جس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبر، ٹھیک ہے،
बिअन्न रब्बका औहा लहा, इस वजह से कि बेशक उसका रब ने उसको वही किया हुआ। ठीक है। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम, उस दिन यसदुरुन्नास, लोग लौटेंगे अश्ताता, अलग अलग। देखिए ये मतलब सोचने की चीज़ है। मतलब हम लोग कभी बोलते हैं इतने लोग का एक बार हिसाब कैसे होगा, मतलब उस पर शायद इसको अल्लाह कहना चाह रहे हैं, ऐसे तफसीर में लोग जानते हैं। मतलब क्या है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि यौम यसदुरुन्नास, लोग लौटेंगे अलग अलग होकर, लियर और अमाल, ताकि वो अपना अमाल दिखा, ताकि उनको दिखा दिया जाए अपना अमाल, है ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, सो जिसने काम किया हो ज़र्रा बराबर भी खैर का वो देख लेगा उसे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने काम किया हो ज़र्रा बराबर भी शर का, वो भी उसको देख लेगा। इंशाअल्लाह अगला, फिर इसके बाद नेक्स्ट में अभी देखेंगे कौन सी सूरत लेना है। ठीक है, अभी ये मतलब अभी मैंने सोचा था बेसिक का, तो बेसिक जो भी है, जो नमाज में ज़्यादातर पढ़ा जाता है वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद सूरह बकरे, सूरह बकरा में जाएंगे इंशाल्लाह। सूरह बकरा को मतलब स्टार्ट करना, चूंकि मैंने जब पुराना स्टार्ट किया तो सूरह बकरे से स्टार्ट किया था, इसलिए हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी सूरह बकरा में जाएं। ये मेरा अपना दिल का वो है, ख्वाहिश। ठीक है, अस्सलाम।